Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter lipids. And in last lecture we have discussed that there are three classes of lipids. First one is the storage lipid, and the best example is triacylglycerol. Second one is the structural lipids, which is present in membrane, and third lipid is specialized lipid, which functions as signals, cofactors and pigments. And in last lecture we have discussed about storage lipids in detail, and in this lecture we will discuss about structural lipids, which is present in membrane. But before starting the lecture, this is what me, I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant micro interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is structural lipids in membrane. So biological membrane का जो central architecture feature होता है, it is a double layer of lipids. So this is a phospholipid bilayer. So phospholipid bilayer की बात करें तो it acts as a barrier to the passage of polar molecules and ions. क्योंकि phospholipid bilayer में जो individual phospholipid molecules होते हैं उसमें दो component present होते हैं. First one is the hydrophilic head group and second one is the hydrophobic fatty acid tail. Second one is the hydrophobic fatty acid tail, जो कि दो hydrophobic fatty acid tail present होते हैं. So phospholipid molecules में दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है. और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों तरह के कंपोनेंट हैं, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक, इसीलिए इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. सो मेम्ब्रेन लिपिड क्या है? मेम्ब्रेन लिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनका एक इंड हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा इंड हाइड्रोफिलिक होता है. ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन आपस में ही इंटरैक्ट करते हैं. सो हाइड्रोफोबिक पोर्शन का इंटरैक्शन आपस में ही होता है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं. सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन विथ ईच अदर and hydrophilic interaction with water directs the packing into sheets called membrane bilayer. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं membrane bilayer. अब सवाल यहाँ पे ये है कि membrane lipids कितने तरह के होते हैं. So membrane lipids की क्लासिफिकेशन की बात करें तो membrane lipids टोटल 5 तरह के होते हैं. First one is the glycerophospholipid. Second one is the galactolipid and sulfolipids, and third one is the archibacterial tetraether lipid. Fourth one is the sphingolipids and fifth one is the sterol. अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन सारे में डिफरेंस क्या है. क्या इनका केवल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है या फिर फंक्शन भी डिफरेंट होता है? सो एक एक करके हम ब्रीफ में समझते हैं एंड देन आई विल कम टू द डिटेल. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल एंड सेकेंड वन इज द फैटी एसिड. सो ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड अटैच होते हैं बाई ईस्टर लिंकेज फ्रॉम द विद द फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन. ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है. सो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. सो ग्लिसरॉल में टोटल 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3. सो कार्बन नंबर 1 एंड 2 से फैटी एसिड अटैच होते हैं बाई ईस्टर लिंकेज, लेकिन जो थर्ड कार्बन होता है, थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं एंड इस फॉस्फेट ग्रुप पे अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच होते हैं. तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड्स अटैच होते हैं और एक कार्बन से फॉस्फेट
फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं जिस पे पोलर हेड ग्रुप अटैच होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो किस चीज से बना हुआ होगा? 2 फैटी एसिड से, और वो ग्लिसरॉल से ज्वाइंट होता है बाय ईस्टर लिंकेज। वहीं पे अगर गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड की बात करें तो इसमें भी ग्लिसरॉल होते हैं, और इसमें भी ग्लिसरॉल के फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे क्या लिंक्ड होगा? फैटी एसिड ज्वाइंट होगा बाय ईस्टर लिंकेज। लेकिन जो थर्ड कार्बन है उससे फॉस्फेट नहीं अटैच होंगे, बल्कि वहां पे मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स अटैच होते हैं। कुछ में सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं या डाइसैकेराइड्स अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं गैलेक्टोलिपिड। लेकिन कुछ में सल्फोनेटेड मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? सल्फोलिपिड्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड में क्या डिफरेंस हुआ? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है किससे? ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन से। लेकिन गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड में ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन से मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स अटैच होते हैं। थर्ड वन इज आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड। आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये काफी यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड है। इसका स्ट्रक्चर भी यूनिक होता है और फंक्शन भी यूनिक होता है। आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड की अगर बात करें तो इसमें भी ग्लिसरॉल होता है, बट इसमें 2 ग्लिसरॉल से एक लॉन्ग अल्काइल चेन अटैच होता है, दैट इज 2 डाइफेटानिल चेन अटैच होते हैं, और इस ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। लेकिन इस ग्लिसरॉल से फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल अटैच्ड होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड। नाउ द फोर्थ वन इज स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड की अगर बात करें तो स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल नहीं होता है। तो सवाल यह है कि स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह क्या होता है? सो स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह पे फैटी एमीन होते हैं, और उसको बोलते हैं स्फिंगोशिन। सो स्फिंगोलिपिड की खास बात यह है कि उसमें ग्लिसरॉल के जगह स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है, और इस स्फिंगोसिन से एक फैटी एसिड अटैच होते हैं, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और उससे पोलर हेड ग्रुप अटैच होते हैं, या फिर मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स अटैच होते हैं, और इनके बेसिस पे स्फिंगोलिपिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। लास्ट क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड इज स्टेरॉल्स, और स्टेरॉल की खास बात यह है कि इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जितने भी स्टेरॉल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस में 4 फ्यूज्ड रिंग होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, एंड आउट ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग 3 रिंग जो होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और 1 रिंग जो होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग होता है। इन चारों रिंग की अगर बात करें तो A, B एंड C इज द 6 मेंबर रिंग एंड D इज द 5 मेंबर रिंग। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेरॉल इज कोलेस्टेरॉल, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो हाइड्रोफिलिक मोटी ऑफ दीज एम्फीपैथिक कंपाउंड्स में बी सिंपल और मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो हाइड्रोफिलिक मोटीज है एम्फीपैथिक कंपाउंड का, ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल की अगर बात करें तो ये जस्ट स्टेरॉल रिंग सिस्टम पे OH ग्रुप अटैच होता है। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल जिसमें OH ग्रुप अटैच है, दैट इज द सिंपल हाइड्रोफिलिक मोटी। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जो कि हम फॉस्फोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स में देखेंगे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड सम स्फिंगोलिपिड्स polar head group is joined to hydrophobic moiety by a phosphodiester linkage, and these are phospholipids. Other sphingolipids lack phosphate but have some simple sugar or complex oligosaccharides at their polar end, and these are called glycolipids. So sphingolipid दो तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड भी हो सकते हैं एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड की अगर बात करें तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिपिड की अगर बात करें तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ ओलिगोसैकेराइड्स या
मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन दिस ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स इनॉर्मस डाइवर्सिटी रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड, टेल एंड पोलर हेड। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। दो तरह के लिपिड यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज द स्टोरेज लिपिड, जिसको न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं। और स्टोरेज लिपिड कौन सा है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। ये फैटी एसिड्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम होता है तो उसको सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट होता है तो उसको मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन लिपिड की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन लिपिड जो होते हैं वो पोलर होते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड को ब्रॉडली 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड्स, सेकंड वन इज द ग्लाइकोलिपिड्स एंड थर्ड वन इज द आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड। एंड इनके अलावा एक और होता है दैट इज स्टेरॉल्स। फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड 2 तरह के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की अगर बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, स्फिंगोलिपिड एंड गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड। एंड थर्ड वन इज द आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से वेरी करता है, क्योंकि स्फिंगोलिपिड फॉस्फोलिपिड भी है एंड ग्लाइकोलिपिड भी है। तो वैसा स्फिंगोलिपिड जो फॉस्फोलिपिड है एंड वैसा स्फिंगोलिपिड जो ग्लाइकोलिपिड है, दोनों में डिफरेंस क्या है एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ग्लिसरॉल होते हैं। ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 से फैटी एसिड्स ज्वाइंट होता है बाई ईस्टर लिंकेज। एंड ग्लिसरॉल का जो 3rd कार्बन होता है उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जिससे पोलर हेड ग्रुप अटैच होते हैं। वहीं पे स्फिंगोलिपिड जो कि फॉस्फोलिपिड है, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फिंगोसिन होता है, इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता है। स्फिंगोलिपिड चाहे फॉस्फोलिपिड हो या ग्लाइकोलिपिड हो, उसमें ग्लिसरॉल नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा। और इस स्फिंगोसिन से फैटी एसिड्स अटैच होते हैं एंड एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, जिससे पोलर हेड ग्रुप अटैच होता है। वहीं पे उस स्फिंगोलिपिड जो ग्लाइकोलिपिड है उसकी अगर बात करें तो स्फिंगोसिन से फैटी एसिड्स अटैच होते हैं और उससे मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स भी अटैच होते हैं। गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड की अगर बात करें तो इसमें ग्लिसरॉल होता है और उस ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं एंड 3rd कार्बन पे फॉस्फेट की जगह मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स अटैच होते हैं और सल्फोलिपिड्स में सल्फोनेटेड मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट वन इज द आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड। आर्कीबैक्टीरियल टेट्राईथर लिपिड की अगर बात करें तो इसमें 2 ग्लिसरॉल होते हैं और दोनों ग्लिसरॉल से डाइफेटाइल चेन अटैच्ड होता है, जो कि लॉन्ग अल्काइल ग्रुप है। 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और इस ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल मोटी अटैच होते हैं। सो दिस इज द क्लियर कट क्लासिफिकेशन एंड क्लियर कट स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स। सो पहले आते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को फॉस्फोग्लिसराइड्स बोलते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का दूसरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसराइड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। अब फॉस्फैटिडिक एसिड क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लिसराइड्स। मेम्ब्रेन लिपिड है जिसमें 2 फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं बाय ईस्टर लिंकेज टू द 1st and 2nd कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल and a highly polar or charged group is attached through the phosphodiester linkage to the 3rd carbon. ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। ग्लिसरॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सो ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कैसे नहीं है? अगर कार्बन नंबर 1 को कंसीडर करें तो इससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, लेकिन आउट ऑफ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है क्या है? सेम है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, मींस इस ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है कि एक कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स
अटैच होते हैं उसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स तो अटैच है, लेकिन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है, जो तीसरा और चौथा सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम है। वहीं पे अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए क्योंकि 2 सेम है इसलिए ये कार्बन भी कायरल नहीं है। लेकिन जब इस कार्बन से फॉस्फेट अटैच होता है देन दिस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज कायरल। सो ग्लिसरॉल को क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल को बोलेंगे प्रोकायरल। नाउ एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को एसएन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बोलते हैं। एसएन इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। स्टीरियो स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। सो ग्लिसरॉल क्या हुआ? ग्लिसरॉल इज ए प्रोकायरल बट एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज कायरल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन से फैटी एसिड अटैच होता है बाय ईस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज है इस लिंकेज को बोलते हैं क्या? ईस्टर लिंकेज, क्योंकि ये अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। सो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड्स लिंक्ड होते हैं बाय ईस्टर लिंकेज, लेकिन जो थर्ड कार्बन होता है उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अगर ये एक्स और इसी फॉस्फेट ग्रुप से हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। क्या होते हैं? हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। अगर ये हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है देन द कंपाउंड इज फॉस्फेटिडिक एसिड, और इसी फॉस्फेटिडिक एसिड से सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। अगर ये हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स इथेनॉल एमीन है देन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। लेकिन अगर ये हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स कॉलिन है तो ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होगा वो क्या होगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट सेरीन है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होगा? फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अगर हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होगा? फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। अगर हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स मायोइनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होगा? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट है। अगर हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होगा? कार्डियोलिपिन। So this is the different types of glycerophospholipids: phosphatidic acid, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl choline, phosphatidyl serine, phosphatidyl glycerol, phosphatidyl 4,5 bisphosphate and कार्डियोलिपिन। नेट चार्ज की बात करें तो फॉस्फेटिडिक एसिड पे नेट चार्ज क्या होगा? -1 एट बायोलॉजिकल pH और pH 7। सो -1 चार्ज कहां से आया? दिस चार्ज रिप्रेजेंट्स -1 चार्ज। सो ये फॉस्फेट का जो चार्ज है दैट इज नेट चार्ज ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड एट pH 7। वहीं पे अगर फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन की अगर बात करें तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन में जो हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स होगा वो क्या होगा? इथेनॉल एमीन। और इथेनॉल एमीन पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज होके क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा? 0। फॉस्फेटिडाइल कोलिन में नेट चार्ज कितना होंगे? 0। फॉस्फेटिडाइल सेरीन का नेट चार्ज कितना होगा? -1। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल का नेट चार्ज -1। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट का नेट चार्ज कितना होगा? -4। वहीं पे कार्डियोलिपिन की अगर बात करें तो नेट चार्ज कितना होगा? -2। और ये जो नेट चार्ज है दिस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का they are responsible for the surface properties of membrane. क्या? Surface properties of membrane. So on the basis of net charge glycerophospholipid 3 तरह के होते हैं। First one is the neutral जिस पे क्या होगा? चार्ज नेट चार्ज 0 होगा। Second one is the पॉजिटिवली चार्ज जो कि नेट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। थर्ड वन इज द निगेटिवली चार्ज जिस पे नेट चार्ज क्या होगा?
निगेटिव। सो न्यूट्रल कौन सा है? फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन। निगेटिवली चार्ज्ड कौन से हैं? निगेटिवली चार्ज्ड इज द फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5-बिसफॉस्फेट एंड कार्डियोलिपिन। वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स की नेट चार्ज की बात करें तो हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल की अगर बात करें तो न्यूट्रल इज फॉस्फेटिडाइल सेरीन। वहीं पे हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो पॉजिटिवली चार्ज है इट इज फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन। वहीं पे अगर निगेटिवली चार्ज्ड हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इट इज PiP2। क्या है? इट इज PiP2। सो फैटी एसिड्स इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कैन बी एनी ऑफ ए वाइड वैरायटी। सो ए गिवन फॉस्फोलिपिड में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज और ईच का यूनिक कॉम्प्लीमेंट होता है फैटी एसिड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज इज स्पेसिफिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स एंड different glycerophospholipids in same cell और tissue। इन जनरल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे जो फैटी एसिड्स अटैच हैं, सो फर्स्ट कार्बन पे जो फैटी एसिड्स होता है वो जनरली C16 या C18 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। वहीं पे अगर सेकंड कार्बन पे जो फैटी एसिड्स है उसकी अगर बात करें तो वहां पे C18 to C20 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो ईस्टर नहीं ईथर लिंकेज फैटी एसिड्स भी होते हैं और ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स के 2 बेस्ट एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मेलोजेन एंड सेकंड वन इज द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब सवाल यह है कि ईथर लिंक्ड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स में भी ग्लिसरॉल होते हैं एंड दीज आर द 3 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। कार्बन नंबर 1 पे एंड कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, बट कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड अटैच होता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है या अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड की अगर बात करें तो इट इज प्लाज्मेलोजेन और इसके कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एज यू कैन सी हियर। और ये जो फैटी एसिड है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये ग्लिसरॉल के साथ ईथर लिंकेज के साथ लिंक्ड होता है। यहाँ पे ईस्टर लिंकेज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? ईथर लिंक्ड एल्कीन ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है। सेकेंड कार्बन पे फैटी एसिड जो लिंक्ड होते हैं वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की बात करें तो कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड्स लिंक्ड होते हैं दे आर ईथर लिंक्ड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कार्बन नंबर 2 पे एसिटाइल ईस्टर होता है, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट होते हैं और प्लाज्मेलोजेंस में भी कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हेड सब्स्टिट्यूएंट्स होता है प्लाज्मेलोजेन में इथेनॉलेमीन होता है, लेकिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में क्या होता है? कोलिन होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मेलोजेंस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर and this structure is important for the examination point of view. So प्लाज्मेलोजेंस की अगर बात करें तो प्लाज्मेलोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रेट के हर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज ए यूनिक फॉस्फोलिपिड जो कि वर्टिब्रेट के हर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द हर्ट फॉस्फोलिपिड्स आर प्लाज्मेलोजेंस। मेम्ब्रेन ऑफ हेलोफिलिक बैक्टीरिया, ciliated protists and certain invertebrates also contain high proportion of ether lipids। अब सवाल यह है कि ईथर लिपिड का सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द फॉस्फोलाइपेजेस। फॉस्फोलाइपेजेस से क्लीव नहीं होगा। फॉस्फोलाइपेजेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये ईस्टर लिंक्ड फैटी एसिड्स को क्लीव करता है, लेकिन यहाँ पे ईस्टर लिंक्ड नहीं है, यहाँ पे ईथर लिंक्ड है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस शो करेगा फॉर द क्लीवेज बाय फॉस्फोलाइपेजेस। नेक्स्ट वन इज द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो कि पोटेंट मॉलिक्यूलर सिग्नल है एंड इट इज रिलीज फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स जिसको बेसोफिल एंड स्टिमुलेट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड रिलीज ऑफ सेरोटोनिन जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर है।
It also exerts a variety of effects on liver, smooth muscle, heart, uterine and lung tissue and play an important role in inflammation and allergic responses. Next one is the galactolipid and sulfolipid. galactolipid and sulfolipid की कुछ खास बातें हैं. galactolipid sulfolipid की अगर लोकेशन की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. अब सवाल ये है कि galactolipid एंड सल्फोलिपिड में डिफरेंस क्या है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ galactolipid एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोलिपिड. galactolipid एंड सल्फोलिपिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी ग्लिसरॉल होता है और एक ग्लिसरॉल का 3 कार्बन दोनों में प्रेजेंट होंगे. अब सवाल यहाँ पे यह है कि ग्लिसरॉल से क्या क्या अटैच होता है. कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड्स लिंक्ड होते हैं बाई ईस्टर लिंकेज. वहीं पे अगर कार्बन नंबर 3 की बात करें तो कार्बन नंबर 3 पे क्या अटैच होता है, गैलेक्टोज. क्या अटैच होता है, गैलेक्टोज अटैच होते हैं. और ये गैलेक्टोज 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है. और क्योंकि ये शुगर है और ये अल्कोहल है तो शुगर और अल्कोहल के बीच का जो लिंकेज होगा वो ईस्टर लिंकेज नहीं होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं होगा. यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा. क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा. सारे में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे क्या था, OH है. और यहाँ पे किससे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है गैलेक्टोज से जो कि मोनोसैकेराइड है. अब ये लिंकेज कैसे बनेगा, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 पे क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोलिपिड. अगर एक गैलेक्टोज होगा तो उसको बोलते हैं MgDG. अगर 2 गैलेक्टोज है तो DG बोलते हैं. सो गैलेक्टोलिपिड्स आर लोकलाइज्ड इन थिलाक्वाइड मेम्ब्रेन. सो क्लोरोप्लास्ट में भी ये थिलाक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है. This one is the outer membrane and this one is the inner membrane. इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस ऑक्यूपाइड है जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं और इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा में वेरियस एंजाइम्स होते हैं फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन. इसी स्ट्रोमा में फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, उसको बोलते हैं थिलाक्वाइड. इसको क्या बोलते हैं, थिलाक्वाइड. और इसी थिलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोलिपिड. सो गैलेक्टोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थिलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन है किसका, कोलेस्ट्रॉल का. एंड दे मेक 70 to 80% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ ए वैस्कुलर प्लांट. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में. और प्लांट के टोटल लिपिड का, टोटल मेम्ब्रेन लिपिड का 70 to 80% कौन रहता है, गैलेक्टोलिपिड. And it is probably the most abundant membrane lipids in biosphere. And most abundant protein क्या है biosphere में, most abundant protein is Rubisco. And most abundant carbohydrate की अगर बात करें तो most abundant carbohydrate क्या है, most abundant carbohydrate की अगर बात करें तो it is cellulose. Phosphate is often a limiting plant nutrient in soil. सवाल यहाँ पे यह है कि अब प्लांट्स में फॉस्फोलिपिड्स क्यों नहीं अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं. रीजन ये है कि प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉस्फेट इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स इन द soil and it is the perhaps evolutionary pressure to conserve the phosphate for more critical roles favor plants that made phosphate free lipids. So क्योंकि प्लांट्स के लिए जो फॉस्फेट होता है वो लिमिटिंग प्लांट न्यूट्रिएंट होता है. सो फॉस्फेट को कंजर्व करने के लिए दिस इज द वे. सो क्योंकि फॉस्फेट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर cyclic, for secondary messenger, for ATP synthesis, or in all the critical role phosphate play important function. नेक्स्ट वन इज द सल्फोलिपिड. सल्फोलिपिड की अगर बात करें तो सल्फोलिपिड का भी स्ट्रक्चर गैलेक्टोलिपिड से सिमिलर होता है. मींस कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड्स लिंक्ड होंगे बाय ईस्टर लिंकेज. वहीं पे अगर कार्बन नंबर 3 की अगर बात करें तो कार्बन नंबर 3 पे गैलेक्टोज नहीं होगा, कार्बन नंबर 3 पे सल्फोनेटेड ग्लूकोज रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज सल्फोनेटेड ग्लूकोज रेजिड्यू. सो सल्फोलिपिड में जो सल्फोनेट है
हेड ग्रुप है, इट बियर्स फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड। इन कंक्लूजन अगर बोले तो गैलेक्टोलिपिड में ग्लिसरॉल के 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पे फैटी एसिड्स लिंक्ड होते हैं बाय ईस्टर लिंकेज। सिमिलरली सल्फोलिपिड में 1 और 2 नंबर पे अटैच होते हैं फैटी एसिड्स बाय ईस्टर लिंकेज, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंस होता है। गैलेक्टोलिपिड में गैलेक्टोज रेजिड्यू अटैच होते हैं, लेकिन सल्फोलिपिड में सल्फोनेटेड ग्लूकोज रेजिड्यू अटैच होते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेम्ब्रेन लिपिड्स इन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसमें यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड होता है। यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड किस सेंस में होता है, इसका रीजन ये है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो सरवाइव करता है एक्सट्रीम कंडीशन पे। एक्सट्रीम कंडीशन हाई टेम्परेचर होता है, लो पीएच होता है, हाई आयनिक स्ट्रेंथ होता है। सो इतना एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करने के लिए कुछ यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट होते हैं। अब वो यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड कैसे होते हैं, इसमें 2 ग्लिसरॉल है, फर्स्ट ग्लिसरॉल एंड सेकंड ग्लिसरॉल। अब इस दोनों ग्लिसरॉल से 2 कार्बन पे एक लॉन्ग ब्रांच्ड अल्काइल चेन प्रेजेंट होता है। उस लॉन्ग ब्रांच्ड अल्काइल चेन को क्या बोलते हैं, डाइफेटानाइल ग्रुप है। और ये जो डाइफेटानाइल ग्रुप होता है ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं। सो दिस इज द डाइफेटानाइल ग्रुप जो कि 2 ग्लिसरॉल से अटैच्ड होते हैं। ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे क्या होता है, डाइसैकेराइड अटैच होता है। इस ग्लिसरॉल के 4th कार्बन पे फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल अटैच होते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल फॉस्फेट। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ archibacterial membrane lipid provides uniqueness to the membrane lipid and these linkages are through the ether bond। यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ether bond है, which are much more stable to hydrolysis at low pH and high temperature than the ester bond found in lipids of eubacteria. In the fully extended form, these archibacterial lipids are twice the length of phospholipids and sphingolipids and span the width of surface membrane. At each end of extended molecule is a polar head consisting of glycerol linked to ether phospholipid and ether phosphate and sugar residue. General name of these compounds is DGGT and reflects their unique structure. Glycerol moiety of the archibacterial lipid is not the same stereoisomers as in the lipid of eubacteria and eukaryotes. So glycerol के अगर सेंट्रल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया में ये जो सेंट्रल कार्बन है इनका R कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहीं पे अदर किंगडम्स में यूकैरियोट्स और यूबैक्टीरिया में जो सेंट्रल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो S कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज द स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड की अगर बात करें तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ स्फिंगोसिन। क्या है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ स्फिंगोसिन। इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, इसमें ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन प्रेजेंट होते हैं। सो पोलर हेड ग्रुप एंड 2 non-polar tail, but unlike phospholipids and galactolipids they contain no glycerol. Glycerophospholipid and galactolipid and sphingolipid में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्लिसरॉल की जगह क्या होता है, स्फिंगोसिन प्रेजेंट होते हैं। सो स्फिंगोसिन की कंपोनेंट की बात करें तो इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। उस अमाइनो अल्कोहल को क्या बोलते हैं, स्फिंगोसिन बोलते हैं। सो दिस इज अमाइनो अल्कोहल जो कि स्फिंगोसिन है। इसको 4-स्फिंजेनिन भी बोलते हैं और वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होता है। मींस स्फिंगोसिन की जगह स्फिंगोसिन डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो सकता है। स्फिंगोसिन के अलावा एक फैटी एसिड्स होते हैं और ये जो फैटी एसिड स्फिंगोसिन से अटैच होता है ये अमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होता है। दिस इज अमाइड लिंकेज। नेक्स्ट वन इज द पोलर हेड ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है एंड दिस लिंकेज इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है, दिस लिंकेज इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो
स्फिंगोलिपिड में भी जो हेड सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू नहीं बल्कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। तो टोटल कितने कंपोनेंट हुए स्फिंगोलिपिड में? टोटल 3 कंपोनेंट हुए। पहला स्फिंगोसिन, दूसरा फैटी एसिड्स, अटैचमेंट अमाइड लिंकेज एंड थर्ड वन इज द हेड सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच है। Carbon number 1, 2 and 3 of sphingosine molecule are structurally analogous to 3 carbons of glycerol in glycerophospholipid. So when a fatty acid is attached in amide linkage to the NH2 on C2, the resulting compound is a ceramide which is structurally similar to diacyl glycerol. Ceramide की अगर बात करें तो it is the structural parent of all the sphingolipids। जैसे phosphatidic acid से सारे glycerophospholipids derive होते थे, उसी तरह सेरामाइड से सारे स्फिंगोलिपिड्स डिराइव होंगे। सो जब यहाँ पे जो हेड सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन होगा, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेरामाइड। वहीं पे अगर हेड सब्स्टिट्यूएंट फॉस्फोकोलिन होगा तो उस स्फिंगोलिपिड को क्या बोलेंगे? स्फिंगोमाइलिन। वहीं पे अगर हेड सब्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज होगा तो वहां पे स्फिंगोलिपिड क्या होगा? न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। वहीं पे अगर हेड सब्स्टिट्यूएंट ट्राई एंड टेट्रासाइक्लाइड होगा तो वहां पे स्फिंगोलिपिड क्या होगा? लैक्टोसाइल सेरामाइड। अगर हेड सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड है देन द स्फिंगोलिपिड इज गैंग्लियोसाइड दैट इज GM2। स्फिंगोलिपिड की क्लासेस की बात करें तो टोटल 3 क्लासेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्फिंगोमाइलिन, सेकंड वन इज द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड थर्ड वन इज द गैंग्लियोसाइड्स। अब सवाल यह है कि ये 3 क्लास ऑफ स्फिंगोलिपिड्स में डिफरेंस क्या है? सो पहले आते हैं स्फिंगोमाइलिन पे। स्फिंगोमाइलिन की अगर बात करें तो स्फिंगोमाइलिन में क्या होगा? स्फिंगोसिन होगा। बट यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हेड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यहाँ पे फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनॉल एमीन होगा। क्या होगा? फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनॉल एमीन होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन जिसमें ग्लिसरॉल है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज अ टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन में ग्लिसरॉल नहीं होता है, यहाँ पे स्फिंगोसिन होता है। दूसरा पोलर हेड ग्रुप की अगर बात करें तो पोलर हेड ग्रुप फॉस्फेटिडाइल कोलिन में भी कोलिन है, स्फिंगोमाइलिन में भी कोलिन है। क्या है? स्फिंगोमाइलिन में भी कोलिन है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के लिंकेज का है। यहाँ पे ग्लिसरॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्फिंगोसिन होगा। यहाँ पे जो फैटी एसिड्स अटैच होंगे वो ईस्टर बॉन्ड से अटैच होंगे, लेकिन इसमें जो फैटी एसिड्स अटैच होंगे वो अमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होंगे। इसमें फैटी एसिड्स का लिंकेज किसके थ्रू होगा? अमाइड लिंकेज के थ्रू होगा। स्फिंगोमाइलिन रिजेंबल फॉस्फेटिडाइल कोलिन इन देयर जनरल प्रॉपर्टीज एंड 3-dimensional स्ट्रक्चर बट नो नेट चार्ज ऑन देयर हेड ग्रुप। स्फिंगोमाइलिन में इनके हेड ग्रुप पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नेट चार्ज नहीं होता है। स्फिंगोमाइलिन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स एंड आर स्पेशली प्रोमिनेंट इन माइलिन। माइलिन क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेनस शीथ जो कि सराउंड एंड इंसुलेट द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स, thus their name are sphingomyelin. So this is the structure and properties of sphingomyelin. Second one is the glycosphingolipid. ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की अगर बात करें तो स्फिंगोसिन प्रेजेंट होते हैं। स्फिंगोसिन से एक फैटी एसिड अटैच होते हैं बाई अमाइड लिंकेज और दूसरा मोनोसैकेराइड्स या डाई ओलिगोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की अगर बात करें तो इट प्रेजेंट लार्जली ऑन द outer face of plasma membrane, have head group with one or more sugars connected directly to OH of carbon number 1 of ceramide. They do not contain phosphate. ग्लाइकोलिपिड्स में फॉस्फेट नहीं होते हैं और इसीलिए इसको न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड 2 तरह के होते हैं, सेरिब्रोसाइट्स एंड ग्लोबोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स की अगर बात करें तो सेरिब्रोसाइट्स में सिंगल शुगर लिंक्ड होता है सेरामाइड से। वहीं पे अगर ग्लोबोसाइट्स की अगर बात करें तो ग्लोबोसाइट्स में न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स विथ 2 और मोर शुगर्स लिंक्ड होते हैं किससे? स्फिंगोसिन से। सेरिब्रोसाइड विद दोज galactose are characteristically found in the plasma membrane of cells in neural tissues and those with glucose in the plasma membrane of cells of non-neural tissue. So cerebrocytes
न्यूरल टिश्यू में है तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा गैलेक्टोज रेजिड्यू, लेकिन अगर नॉन न्यूरल टिश्यू है तो उसमें होगा क्या, ग्लूकोज रेजिड्यू। ग्लोबोसाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 और मोर शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 और मोर शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि इस पे नेट चार्ज pH 7 पे 0 होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। सो सेरामाइड, स्फिंगोसिन, फैटी एसिड्स, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा सब्स्टिट्यूएंट्स में तो सेरामाइड होगा। अगर यहाँ पे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, गैलेक्टोज और इस गैलेक्टोज से फ्यूकोज अटैच है तो यहाँ पे इसको ओ एंटीजन डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे इस गैलेक्टोज से एक और एन एसिटाइल ग्लूकोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन अगर लिंक्ड है तो ये ए एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस गैलेक्टोज से एक और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल अटैच है तो ये बी एंटीजन को डिटरमाइन करेगा। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप को भी डिटरमाइन करते हैं। द थर्ड क्लास ऑफ स्फिंगोलिपिड इज गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स की अगर बात करें तो इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड। इसमें जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं एज द पोलर हेड ग्रुप एंड 1 और मोर रेजिड्यू ऑफ एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जिसको सियलिक एसिड बोलते हैं, और ये सियलिक एसिड क्या होता है, टर्मिनाई पे होता है। मींस इसमें पोलर हेड ग्रुप में क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड्स। अब उस ओलिगोसैकेराइड्स का जो टर्मिनल रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। सियलिक एसिड गिव्स गैंग्लियोसाइड्स एट नेगेटिव चार्ज एट pH 7 जो कि डिस्टिंग्विश करता है किससे, ग्लोबोसाइड से। गैंग्लियोसाइड्स विथ 1 सियलिक एसिड रेजिड्यू उसको GM बोलते हैं, M स्टैंड्स फॉर मोनोसेरेज। लेकिन अगर 2 सियलिक एसिड रेजिड्यू है तो उसको GD सीरीज बोलेंगे, अगर 3 सियलिक एसिड रेजिड्यू है तो उसको GT सीरीज बोलेंगे। सो दिस इज अबाउट गैंग्लियोसाइड्स। स्फिंगोलिपिड्स की अगर बात करें तो ये सेल सरफेस पे होता है जो कि साइट्स ऑफ बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन है। सो व्हेन स्फिंगोलिपिड्स वर डिस्कवर्ड अ सेंचुरी अगो बाय फिजिशियन केमिस्ट जोहान थुडिचुम, their biological role seems to be enigmatic as sphinx, for which therefore he named them. So in humans at least 60 different sphingolipids have been identified in cellular membranes. Many of these are especially prominent in the plasma membrane of neurons and some are clearly recognition sites of the cell surface, but a specific function of only a few sphingolipids has been discovered thus far. कुछ ही ऐसे स्फिंगोलिपिड्स हैं जिनका फंक्शन डिस्कवर्ड हुआ है। कार्बोहाइड्रेट मॉडल्स होते हैं स्फिंगोलिपिड्स के, दे डिटरमाइन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कि अभी हमने देखा। It may therefore determine the type of blood that individual can safely receive in blood transfusion. Gangliocytes की अगर बात करें तो ये concentrated होते हैं on the outer surface of cells where they present points of recognition for extracellular molecules or surfaces of neighboring cells. The kinds and amounts of gangliocytes in the plasma membrane change dramatically during embryonic development. Tumor formation induces the synthesis of new complement of gangliocytes and very low concentration of specific gangliocytes have been found to induce differentiation of cultured neuronal tumor cells. फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स की जो डिग्रेडेशन होती है वो कहाँ होती है, लाइसोसोम में होती है। फॉस्फोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स को डिग्रेड करने के लिए स्पेसिफिक लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलाइपेज A1 की अगर बात करें तो फॉस्फोलाइपेज A1 इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के इस फर्स्ट कार्बन पे जो फैटी एसिड्स ईस्टर लिंकेज से अटैच होते हैं उस ईस्टर लिंकेज को क्लीव करता है, हाइड्रोलाइज करता है। मींस फॉस्फोलाइपेज A1 स्पेसिफिक होता है ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पे जो ईस्टर बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए। वहीं पे अगर फॉस्फोलाइपेज A2 की बात करें तो ये C2 ग्लिसरॉल को
कार्बन ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 2 पे जो ईस्टर बॉन्ड होता है उसको क्लीव करने के लिए, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेसिफिक होता है। वहीं पे अगर फॉस्फोलाइपेज सी की बात करें तो कार्बन नंबर 3, ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 पे जो ईस्टर बॉन्ड होते हैं, डायरेक्टली ईस्टर बॉन्ड जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसको हाइड्रोलाइज करता है। वहीं पे अगर फॉस्फोलाइपेज डी की बात करें तो जो शुगर रेजिड्यू अटैच होते हैं ईस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट के साथ, उस ईस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। सो फॉस्फोलाइपेज A1, A2, C एंड D, ये चारों के चारों फॉस्फोलाइपेज जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर हाइड्रोलाइजिंग द ईस्टर बॉन्ड, और एक फैटी एसिड्स का हाइड्रोलाइज होता है। सो बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, दीज स्ट्रेचेस डू नॉट अटैक द ईथरलिंक प्लाज्माइलोजेंस। Lysophospholipases remove the remaining phospholipids. Gangliosides की अगर बात करें तो they are degraded by set of lysosomal enzymes that catalyze the stepwise removal of sugar units, finally yielding ceramide. And genetic defect in any of these hydrolytic enzymes lead to accumulation of gangliosides in the cell with severe medical consequences. स्टेरॉल्स की अगर बात करें तो स्टेरॉल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस। क्या है? स्टेरॉइड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। अब सवाल यह है कि स्टेरॉइड न्यूक्लियस है क्या? स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज ए 4 रिंग फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट रिंग, दिस इज द सेकेंड रिंग, दिस इज द थर्ड रिंग एंड दिस इज द 4th रिंग। रिंग को यहाँ ABCD से नोमेनक्लेचर किया जाता है। आउट ऑफ 4 रिंग, 3 रिंग जो है 6 मेंबर्ड है, 1 रिंग जो है ये 5 मेंबर रिंग है। सो जितने भी स्टेरॉल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज रिंग विथ 3 6 कार्बन एंड 1 विथ 5 कार्बन। स्टेरॉइड न्यूक्लियस की अगर बात करें तो यह ऑलमोस्ट प्लेनर होता है, रिलेटिवली रिजिड होता है एंड फ्यूज्ड रिंग डू नॉट अलाउ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो इट इज द मेजर स्टेरॉल इन एनिमल टिश्यू, एम्फीपैथिक होता है विद ए पोलर हेड ग्रुप, the hydroxyl group at C3 and a non-polar hydrocarbon body. The steroid nucleus and hydrocarbon side chain at C17 avoid as long as 16 carbon fatty acids in its extended form. Similar sterols are found in other eukaryotes. For example, plants की अगर बात करें तो plants में stigma sterol होते हैं। fungi की अगर बात करें तो fungi में ergosterol present होते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो स्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं करता है। किसी भी प्रोकैरियोट्स में सिंथेसिस नहीं होता स्टेरॉल के, मींस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में स्टेरॉल प्रेजेंट नहीं होता है। बट कुछ बैक्टीरियल स्पेसीज होते हैं जो अपने मेम्ब्रेन में एक्सोजीनस स्टेरॉल को क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्टेरॉल्स ऑफ ऑल यूकैरियोट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट्स एज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, क्विनोन्स एंड डॉलिकोल्स। इसके अलावा मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट्स स्टेरॉल सर्व as precursor for the variety of products with specific biological activities. Steroid hormones are potent biological signals that regulate gene expression, while acids are polar derivative of cholesterol that acts as detergents in the intestine and emulsify the dietary fats to make more readily accessible to digestive lipases. So this is all about structural lipids which is present in membrane, and in my next lecture we will discuss about specialized lipids that function as signals, cofactors and pigments. And stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.